our educational group feel pleasure to extend a very warm welcome to each one of you in this motivational session of Young Mind Movement. The Young Mind movement led by Sadhguru Sakshi Sriji is aimed at empowering young individuals with the tools and techniques necessary to navigate the challenges of modern life with ease and grace. We are honored to have amongst us our eminent guest, Sadhguru Sakshi Sriji, who is a spiritual master and the founder of Young Mind Movement. He is known for his unique approach towards personal and spiritual growth. I now request Chairman Sir to welcome our honorable guest, Sadhguru Sakshi Sriji. Sir, please. Now I request Babita Ma'am, Director Pharmacy, to welcome our honorable guest, Sadhguru Sakshi Sriji. Ma'am, please. Thank you, sir. Now I request Director Ma'am to welcome our guest, Dr. Gaurav Pratap Singh, sir. I now request Dr. Babita Kumar Ma'am, Director of Pharmacy, to welcome our Chairman, sir. Thank you, everyone. Now I would like to invite Ruchika Srivastava Ma'am to introduce our eminent guest, Sadhguru Sakshi Sriji. Thank you, Soumya. A very good afternoon to one and all present here. Sadhguru Sakshi Sriji is a spiritual master and mystic who is spearheading the Young Mind movement for conscious living across the world. His mission is to spread the message of love and medication all over the world for creating a new humanity with sound body, sound mind, and self realization that would live a life filled with the everlasting happiness and bliss while simultaneously enjoying the fruits of worldly prosperity and riches. Ever since he was endowed with the divine power by his own Guru, Swami Shrudasnacharya Ji Maharaj, he left his comfortable life as a top Indian bureaucrat to devote it to rescuing people from their drudgeries through the path of spirituality. Now, through his seminar, he aims to empower young minds to overcome their fears, manages their stress, and unlock their full potential and achieve a better sense of purpose and fulfillment in their personal and professional lives. Guruji believes in the power of education and thoughts, and his NGO arm, Jhuggi Jhopdi Siksha Seva Samiti, has established Science Divine School, where children from nearby slum dwelling are given access to the quality educational infrastructure supplemented with the programs especially designed with the mental health awareness in mind. Guruji has also devised many scientific techniques intended to simplify the path of spirituality. These techniques include Sanjeevani Kriya, Mahamedha Kriya, and Siddha Kamana Kriya. Under his guidance, the Science Divine
has organized over 1,000 workshops across the India, even abroad, to educate and train people through these kriyas. And for his contribution to humanity through meditation, Guruji was recently conferred with the honorary doctorate degree by the University of Sorbonne, France. Guruji, it's a great privilege and honor to have you with us today. Now, I would like to request Guruji to bless us to rediscover a new meaning of joyful living by undergoing inner transformation. Guruji, please. Okay. Okay, thank you. And my heartiest welcome to all the young minds present over here, including our beloved chairman, sir. आज बहुत आनंदित हूँ इतने सारे युवा चित्त वाले लोगों के बीच अपने जीवन के हृदय के अनुभव शेयर करने का जो अवसर मिला है। उसके प्रारंभ में सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि आपके बीच आने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक ही है कि आज मैं आपको वो विज्ञान उपलब्ध कराना चाहता हूँ जो युवाओं को कभी उपलब्ध कराए जाने की दिशा में किसी संस्था के द्वारा या शासन सरकार के द्वारा कभी सोचा ही नहीं जाता है। और वह इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि जिसके बिना हमारे युवाओं को हंसता हुआ जीवन जिंदगी भर नहीं मिल पाता है। और आपसे इसीलिए सबसे पहली बात कहना चाहता हूं, हर बच्चे के भीतर असाधारण क्षमता निहित है, उसके भीतर एक जीनियस है। कोई ऐसा बच्चा हुआ है जिसके भीतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भरा हुआ नहीं है, हर बच्चे के भीतर है और हर बच्चा उसको विकसित भी कर सकता है। हमारी जितनी उनका हम सिर्फ 5% ही उपयोग कर पाते हैं। 95% आपकी शक्तियां छिपी हुई सोई हुई रह जाती हैं और जिसके कारण आपके जीवन में, पूरे जीवन में जो हंसी, जो खुशहाली, जो आनंद और जो अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां हो सकती हैं, आप उनसे वंचित हो जाते हैं। तो इस विज्ञान को मैं सारी दुनिया के युवाओं और युवा चित्त वाले लोगों के बीच पहुंचाना चाहता हूं ताकि उनकी जिंदगी में आनंद के और विराट संपदा के फूल खिल सके। तो दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, युवा चित्त का उम्र से कोई संबंध नहीं। हमने 70 साल के युवा भी देखे हैं और 17 साल के बूढ़े भी देखे। कोई बात है जो युवाओं में होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो उनका चित्त युवा नहीं है, उनका चित्त बूढ़ा है। पहली बात जो होनी चाहिए युवा में, उसे मैं कहता हूं, नई नई चीजों को सीखने की तत्परता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। उनके भीतर स्वयं को बदलने की, रूपांतरित करने की, ट्रांसफॉर्म कर डालने की ललक होनी चाहिए, धधक होनी चाहिए कि मुझे स्वयं को बदलना है, मुझे आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। जो आज तक कोई भी मनुष्य कर सका है उसे मुझे करके दिखाना है, उसे मुझे पाना है, वही मुझे भी होना है। जिसके भीतर ये प्यास नहीं होती है, सीखने की ललक नहीं होती है, स्वयं को रूपांतरित करने की तड़प नहीं होती है, वो युवा नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ बैठे हर बच्चे के भीतर ये तड़प हो, ये प्यास हो। और इफ आई आस्क यू, आपके भीतर ऐसी प्यास है
तो आप क्या कहेंगे, यस और नो? यस, वंडरफुल। तो आप पात्र हैं मेरी बात सुनने के लिए। दूसरी बात जो यंग माइंड के लिए, युवा चित्त के लिए जरूरी है, वह है आपके भीतर एक ऊर्जा लबालब भरी होती है, जो न जवानों में होती है न बूढ़ों में होती है। जिसके भीतर वो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का दूसरा परिणाम है साहस होता है। साहस यानी करेज। साहस का अर्थ है कि जो रास्ता आपको गलत दिख जाए, उस रास्ते को छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, और जो रास्ता सही दिख जाए, उस रास्ते पर चलने का साहस होना चाहिए। लेकिन मैं समाज में देखता हूं, अधिकांश लोग जान लेते हैं कि जिन रास्तों पर वह चल रहे हैं, उन रास्तों पर चलते रहने से आज तक कुछ नहीं मिला है। वही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, वही पुरानी परंपराएं जिनको वो ढो रहे हैं जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर, वही पुराने वस्त्र जो पहने चले आ रहे हैं अनंत काल से, सिर्फ उनको उतार फेंकने का साहस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके भीतर हिम्मत नहीं है। वो कहते हैं हमारे बाप दादा पुरानी पीढ़ियां करती चली आई हैं, हम कैसे उन्हें छोड़े। लेकिन युवा चित्त का अर्थ है कि अगर गलत दिख जाए तो छोड़ देने का साहस करना चाहिए। यस और नो? अगर गलत को छोड़ने का, सही को पकड़ने का साहस आपके भीतर नहीं है, तो आप युवा नहीं हैं। और मैं आपसे कहूं, साहस का दूसरा अर्थ यह भी है कि अनजान रास्तों पर चलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। जिन रास्तों का आपको पता नहीं, उन पर भी जाने की हिम्मत होनी चाहिए। एक पदार्थ का जगत है, पदार्थ के अज्ञात लोक में प्रवेश करने की चेष्टा करेंगे तो आपके भीतर विज्ञान पैदा होगा। यस और नो? और एक लोक अंतस जगत का है, भीतर का है, आत्मा का जगत है। तो भीतर के अंतस के जगत के अज्ञात लोक की दिशा में सक्रिय होने का, आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, इस दिशा में भी खोज की प्यास आपके भीतर होनी चाहिए। और जब यह प्यास आपके भीतर होती है तो अध्यात्म पैदा होता है। और अगर आप अज्ञात जगत में अनजान रास्तों पर चलने की, खोजने की हिम्मत आपके भीतर नहीं है, तो आप नया रास्ता नहीं खोज पाते हैं, अपना स्वयं का रास्ता नहीं खोज पाते हैं, आप दूसरों की नकल करने लगते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि हम अनंत काल से नए अनजान रास्तों की खोज करने में सफल नहीं हुए, अपने युवाओं को इस दिशा में सक्रिय नहीं कर पाए। इसी के कारण हम नकलची हो गए हैं। आज भी हिंदुस्तान पश्चिम की नकल कर रहा है, इमिटेशन। जो इमिटेशन करने लगता है उसकी आत्मा नहीं पैदा होती। और ऐसा नहीं कि आज हम पश्चिम की नकल, आज ही हम पश्चिम की नकल, हम पहले भी नकलची ही थे। आज के पहले भी हम सिर्फ अतीत की नकल करते आ रहे, अतीत की नकल करते रहे कि पहले ऐसा होता था, हम वही करेंगे। यानी जो आज से हजार हजार साल पहले हमारे पूर्वजों ने किया, जैसा जैसा उन्होंने किया हम वही करेंगे। तो हम अतीत की नकल करने में लगे रहे, इसलिए विज्ञान नहीं पैदा कर पाए। हम अनजान रास्तों में चलने की हिम्मत नहीं किए, इसलिए हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं। हमें अपना रास्ता खुद को खोजना है। जब खोज मर जाती है
जब अपनी खोज मर जाती है तो आदमी सिर्फ नकल करने को विवश हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ युवाओं के भीतर पदार्थ के जगत में और अंतस के जगत में अनजान रास्तों की खोज करने की प्यास, अनजान रास्तों को खोजने का साहस होना चाहिए। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, साहस का अर्थ है अकेले खड़े होने का साहस। भीड़ क्या कहती है, समाज क्या कहता है, इसकी फिक्र किए बिना जो आपको भीतर से सही लगे, जो आपके अंतरात्मा की आवाज हो, उसको सुनने की और उसके अनुसार चलने की कोशिश करना चाहिए। घिसे पिटे रास्तों पर चलने की नहीं, अपने अंतरात्मा के आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा चित्त आपके भीतर है तो आप युवा चित्त हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी के जितने असाधारण सफलता पाने वाले लोग रहे हैं, वे सारे के सारे लोग बागी और विद्रोही रहे। आपसे कहूं, महावीर और भगवान बुद्ध ने अपने समय में वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति से पैदा हुई परंपराओं के खिलाफ विद्रोह किया। तभी महावीर और भगवान बुद्ध इस पृथ्वी पर एक नया अनूठा विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, जीवन जीने का विज्ञान दुनिया को दे सके। अगर वो बगावत नहीं करते, केवल हिंदू धर्म की परंपराओं को मानते चले जाते, तो आज बुद्ध इस पृथ्वी पर पैदा नहीं होता, प्रकट नहीं होता। इसलिए आपको पता है, यहूदी घर में पैदा हुए जीसस, उन्होंने यहूदी परंपराओं के विरोध खिलाफ बगावत की, विद्रोह किया, और उसका परिणाम क्या हुआ? एक नया विज्ञान उन्होंने सारी मनुष्यता को क्रिश्चियनिटी के माध्यम से दिया। और भारतवर्ष में कृष्ण हुए, सदगुरु नानक हुए, संत कबीर हुए। इन्होंने आज से हजारों साल पहले आग पैदा की देश में, समाज में। आज से 1000 साल पहले कबीर जैसा आदमी कह सका, हिंदू तुरुक की एक राह है, आग दुनो घर लागी। यानी दोनों को ललकारा उन्होंने। वे हलाल, वे झटका मारे। ताते घर चकिया भली, पीस खाए संसार। यानी इस तरह की आग पैदा करने वाली बातें कबीर जैसे लोगों ने की। वे सच्चे अर्थों में युवा चित्त वाले लोग हैं। जो कबीर ने आवाज़ उठाई, जो नानक ने आवाज़ उठाई, जो संत रविदास ने आवाज़ उठाई, वो आज 21वीं सदी में भी वैसी आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं पैदा हो रहे, क्योंकि आज मनुष्यता बूढ़े चित्त वाली हो गई है। मैं चाहता हूँ एक एक बच्चा कबीर हो। मैं चाहता हूँ एक एक बच्चे के स्वर में बुद्ध की भनक हो, धमक हो, आवाज हो, स्वर हो। इसलिए आपको इन महान महत्वपूर्ण सत्यों से अवगत कराना चाहता हूँ। आपके भीतर अपनी अंतरात्मा की आवाज होनी चाहिए। ये आवाज कैसे पैदा होगी? लकीर के फकीर नहीं बनना है। आधुनिक युग में भी आप देखें, अगर बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स पढ़ाई छोड़कर अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर उसके अनुसार काम में न लग गए होते, तो आज माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल पैदा नहीं होता। यस और नो? तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुन सकें, ये कैसे संभव है? और आपके भीतर आपकी अंतरात्मा की आवाज उठ सके, ये कैसे संभव है? यही विज्ञान
आज आपको उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपके बीच आया हूं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहूंगा कि आपको इस देश में जन्म से लेकर पूरे जीवन यही सिखाया जाता है, विश्वास करो। यस और नो? और हमारे यहाँ तो धर्म का प्राण ही है। एक एक बच्चे को सिखाया जाता है कि भगवान को मानो, माँ बाप की मानो, समाज की मानो, परंपरा की मानो, मानो मानो मानो, सिर्फ मानते जाओ। और इस मानते जाने का परिणाम क्या होता है? आपकी स्वयं की खोज समाप्त हो जाती। अगर आपसे कह दिया गया कि भगवान को मान लो, तो बिना जाने आप भगवान को मान लेते हैं। और जो बिना जाने भगवान को मान लेता है, तो फिर भगवान की खोज की जरूरत पड़ेगी? तब खोज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने मान लिया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतवर्ष में विज्ञान नहीं पैदा हो सका, क्योंकि हम मानने वाले लोग थे। बचपन से हमें मान लेने की बात सिखाई गई। और विज्ञान का प्रारंभ होता है कहां से? संदेह से। डाउट 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 एवरीथिंग, देन यू विल रीच द साइंटिफिक कंक्लूजन। यस और नो? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अध्यात्म भी शुरू होना चाहिए मान लेने से नहीं, जान लेने से। इसीलिए हजार हजार साल पहले कबीर जैसे लोग, उन्होंने कहा, जिन जाना तिन मानिया, जिन जाना तिन मानिया, यानी जिसको जान लो उसी को मानो। बिना जाने जो मान लेता है वो नपुंसक हो जाता है और पूरी जिंदगी भर नपुंसकत्व का जीवन जीता है। वो, उसके भीतर आत्मा नहीं पैदा होती, उसके भीतर व्यक्ति नहीं पैदा होता, उसके भीतर युवा चित्त नहीं पैदा होता। वो बूढ़ा ही पैदा होता है, बूढ़ा ही बूढ़ा जीता है, और बूढ़े बूढ़े जीते हुए बुढ़ापे में ही संसार से विदा हो जाता है। यस, तो मैं कहना चाहता हूं कि विश्वास नहीं, संदेह करना सीखो, संदेह करना शुरू करो। मैं जहां भी जाता हूं वहां पूछता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, कितने युवा मित्र यहां पर ऐसे हैं जो आस्तिक हैं, जो ईश्वर को मानते हैं? हाथ उठाएं। ओके, देखिए, हम सारे लोग आस्तिक हैं, पूरा हिंदुस्तान आस्तिक है, लेकिन ईश्वर का, परमात्मा का किसी ने अनुभव किया है? किसी ने ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को जाना है? नहीं जाना है। सिर्फ इसीलिए नहीं जान पाए हम ईश्वर को, आत्मा को, क्योंकि हम बिना जाने ही उसको मानने लगे। और बिना जाने जो मान लिया जाता है, पहली बात, उसकी खोज नहीं संभव हो पाती, उसका अनुभव हमें नहीं हो पाता है। इसीलिए आप में से किसी को आत्मा का, ईश्वर का, परमात्मा का कोई अनुभव नहीं है। और आध्यात्मिक दृष्टि से हम अपने को अध्यात्म का शिखर समझते हैं और दुनिया का जगत गुरु मानते हैं, लेकिन जिसने जाना ही नहीं, वो कैसे जगत गुरु हो सकता है? एक समय था जब जानने की तरंग हमारे भीतर थी, तब हम जगत गुरु कहलाए, और आज हम उस क्षमता को भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं। अब हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपंग हो गए हैं।
इसलिए मैं चाहता हूँ अब आपका अध्यात्म भी अनुभव पर आधारित हो, संदेह पर आधारित हो, मान लेने पर आधारित नहीं हो। तो मैं 2 मिनट के लिए आपसे कहूँगा अपनी अपनी आंखें बंद कर ले एंड बी इन ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन। No words, please. Be in a state of total silence. Be in a state of total relaxation. आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोले। दो मिनट के लिए आप सबसे मैंने समग्र विश्राम की अवस्था में होने का आग्रह किया। इसके पीछे एक राज है जिसे अभी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं चौथा सूत्र इवा चित्त होने का बताना चाहता हूं। इवा चित्त का चौथा आयाम है कि अध्यात्मवादी होने या भौतिकवादी होने की सीमाओं से मुक्त होना चाहिए। अगर मैं यहां से पूछूं कितने लड़के हैं जो आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं, अध्यात्मवादी हैं, हाथ उठाएं। जो भी बच्चे अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, हाथ उठाएं। ओके। और जो बच्चे भौतिकवाद को मानते हैं वो हाथ उठाएं। ओके। तो यहां पर इसका मतलब न आप भौतिकवादी हैं न अध्यात्मवादी हैं। तो फिर कोई बच्चा बताए कि वो क्या है। अगर भौतिकवादी नहीं है, अध्यात्मवादी नहीं है, तो कोई बच्चा बताए वो क्या है, इन दोनों में से क्या है, कहाँ है, किस अवस्था में। भौतिकवादी का अर्थ समझते हैं मटेरियलिस्ट, और अध्यात्मवादी का अर्थ है स्पिरिचुअलिस्ट। तो मटेरियलिस्ट होना अच्छी बात है या नहीं? यस और नो? हैं? यस और नो? और स्पिरिचुअलिस्ट होना अच्छी बात है? यानी स्पिरिचुअलिस्ट होना अच्छी बात है और मटेरियलिस्ट होना अच्छी बात नहीं है। यस और नो? मैं इसलिए पूछ रहा था कि यहीं पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात जीवन की बताना चाहता हूँ, इस अस्तित्व का सबसे बड़ा राज बताना चाहता हूँ। इस पृथ्वी पर मनुष्यता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है कि इस पृथ्वी पर कुछ लोग या तो अध्यात्मवादी हुए और या तो वे भौतिकवादी हुए। भौतिकवादी चार वाक जीवन दर्शन को मानते हैं कि जो कुछ है ये पदार्थ का जगत है, ये शरीर है, ये जीवन में जो कुछ आंखों से दिखाई पड़ता है वही है, इसके अलावा, इस पदार्थ के अलावा, मैटर के अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों ने, भौतिकवादी लोगों ने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। ये भौतिकवादी दृष्टि है। यानी फिर तो मर ही जाना है, संसार से चले ही जाना है, इसलिए जब तक हैं
यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। और अध्यात्मवादी, ये भौतिकवादी दृष्टि है, ये चारवाक दर्शन है भारतवर्ष का। तो कुछ लोग इस पृथ्वी पर हुए जो आत्मा को नहीं मानते थे, सिर्फ शरीर को और पदार्थ को मानते थे, वो भौतिकवादी हो गए। उन्होंने कहा यावत जीवित सुखम जीवित। तो आत्मा वगैरह की और परमात्मा वगैरह की वो बात नहीं करती, वो कहते हैं ये सब नॉनसेंस है। क्या है? नॉनसेंस, मूर्खता की बातें हैं। आत्मा परमात्मा कौन देखा है, कहाँ है, होगा भी कि नहीं होगा? तो मैं आपसे बताऊं, ये एक वर्ग है। दूसरा वर्ग हुआ अध्यात्मवादियों का। उन्होंने कहा जो कुछ है वो असली चीज़ तो आत्मा है। शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा नहीं रहती, तो कहते हैं ही इज नो मोर। अगर इस शरीर में आत्मा न रही तो सारा शरीर बेकार हो गया। तो उन्होंने कहा शरीर नहीं, आत्मा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आत्मा के तल की बातें की जाएं। तो आत्मा और परमात्मा की बातें उन्होंने शुरू की कि आत्मा और परमात्मा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आत्मा और परमात्मा के नाम पर धर्म की बातें करते रहे। वो हो गए अध्यात्मवादी। तो सारी मनुष्यता दो भागों में बट गई, भौतिकवादी और अध्यात्मवादी। और आज तक यही बुरा हाल है इस देश का। इस देश का नहीं, संपूर्ण मनुष्यता का, संपूर्ण पृथ्वी का। और मैं सच्ची अपने जीवन के अनुभव की, इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों के जीवन के अनुभव की बात आपसे कहना चाहता हूँ। जो अध्यात्म के वैज्ञानिक हुए हैं, जो एनलाइटेंड सोल्स हुए हैं, लाइक महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, उपनिषद के ऋषि, नानक, दादू, रैदास, कबीर, इन लोगों ने कहा तुम ना तो केवल शरीर हो, ना ही केवल आत्मा हो। यू आर नॉट ओनली बॉडी, नॉट ओनली सोल, यू आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यस और नो? तो सच्चाई यही है, जो शरीर की आवश्यकता है वह है रोटी, कपड़ा, मकान, और जो आत्मा की आवश्यकता है वह है स्वयं के भीतर चेतना को ले जाना, आत्मा से संबंध जोड़ना, आत्मा के अनुभव को प्राप्त करना। ये अध्यात्मवाद है। तो आपको शरीर के सुख सौंदर्य को बढ़ाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है, उसकी साधना करनी है। लेकिन साथ में अगर एक जो दूसरा आयाम आत्मा का है उसको हम छोड़ देंगे तो आधे को हमने इग्नोर कर दिया। इसका परिणाम क्या होगा? एक आदमी का आधा शरीर भारी हो जाए और आधा शरीर 1% हो जाए, आधा शरीर 99% हो जाए, तो वो आदमी नॉर्मल होगा? नहीं। इस पृथ्वी पर यही हाल हुआ। जितने लोग हुए आध्यात्मिक लोग, उनका आधा शरीर अध्यात्म का भारी हो गया और आधा शरीर जो दूसरा हिस्सा है भौतिक शरीर, भौतिकवाद से संबंधित, वो 1% रह गया, वो भी अपंग हो गए। और भौतिकवादी भौतिकता में ही डूब गए, आत्मा की फिक्र ही छोड़ दी उन्होंने। तो दोनों के जीवन में आनंद नहीं पैदा हो सका। अगर आनंद को जीवन में पैदा करना है और इस जीवन में असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त करना है तो शरीर और आत्मा दोनों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोनों अनिवार्य अंग हैं आपके। तो रोटी, कपड़ा, मकान की भी व्यवस्था करनी है और साथ में ध्यान करना भी जरूरी है। ध्यान का अर्थ है स्वयं की आत्मा से संबंध जोड़ना। स्वयं की आत्मा से संबंध जोड़ने का माध्यम इस शरीर का सूक्ष्मतम रूप है
आत्मा, और आत्मा का स्थूलतम रूप है शरीर। यानी एक ही यूनिट है आपकी। आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है, और मनुष्य भी साइकोसोमैटिक है। अब 21वीं सदी में फिजिकल साइंस और मेडिकल साइंस दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में शरीर और आत्मा दोनों के भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। शरीर का भोजन है रोटी कपड़ा मकान, और आत्मा का भोजन है ध्यान। इस संबंध में चीजें और स्पष्ट करूंगा, अभी आप इतना ही समझ लें। तो ईवा चित्त का अर्थ हुआ बॉडी एंड माइंड एंड सोल, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ही यूनिट का 3 डायमेंशन है। द पॉइंट इज क्लियर? ओके। और ईवा चित्त का 5वां आयाम है कि अंधविश्वासों पर आधारित परंपरावादी धारणा को छोड़ देना। जैसे तमाम सारी धारणाएं हमने पाल रखी हैं, चाहे वो जातिवाद की हैं, संप्रदायवाद की हैं, क्षेत्रवाद की हैं, धर्मवाद की हैं, उनसे मुक्त हो जाना। जो इनके घेरे में है वो बूढ़े चित्त वाला है, जो इनके घेरे से बाहर है वो युवा चित्त वाला है। और इसके अलावा जिस समाज में नारी की गरिमा, नारी का सम्मान और उनके समान अधिकार की बात ना हो, वो समाज वास्तव में युवा नहीं, बूढ़ा परंपरावादी समाज है, और वो समाज ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सारे दुनिया के लोग सामाजिक क्रांति की बात करते हैं, सांस्कृतिक क्रांति की बात करते हैं, राजनैतिक क्रांति की बात करते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सारी क्रांतियाँ आज तक असफल हो चुकी हैं। ना तो कोई सामाजिक क्रांति आज तक सफल हुई, ना कोई राजनैतिक क्रांति आज तक सफल हुई। क्रांति के नाम पर लोग एक सत्ता को उखाड़ फेंकते हैं और क्रांतिकारी सत्ता में आ जाते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं क्रांतिकारी तो वही काम करने लगते हैं जो उन लोगों ने किया था जिनकी सत्ता को उखाड़ के फेंका है। भ्रष्टाचार के नाम पर एक सत्ता को उखाड़ कर फेंका जाता है, और फिर जो सत्ता में आ जाते हैं वह उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार करने लगते हैं। तानाशाही बढ़ गई थी, इसलिए विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, और दूसरे लोग सत्ता में आ गए। जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उससे भी बड़े तानाशाह हो जाते हैं। पूरे दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितनी क्रांतियां हुई हैं इस पृथ्वी पर विभिन्न देशों में, सारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांतियां असफल हो गई। उसका एक ही कारण है, क्योंकि कोई भी क्रांति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति आत्म क्रांति से न गुजरे, जब तक व्यक्तियों के भीतर आंतरिक रूपांतरण न हो। जब तक व्यक्ति नहीं बदलेगा तब तक समाज नहीं बदलेगा, तब तक देश नहीं बदलेगा, और तब तक केवल सत्ता बदल सकती है, क्रांति हो सकती है, लेकिन क्रांति का स्वरूप नहीं बदलेगा। तब तक देश में खुशहाली नहीं आ सकती है, सौंदर्य नहीं आ सकता है, आनंद नहीं आ सकता है। इसलिए ईवा चित्त का अर्थ है कि सारी क्रांतियों के झमेले में न पड़े। सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनैतिक क्रांति के झमेले में स्वयं को नहीं डालना, सारा फोकस आत्म क्रांति की दिशा में करना है। स्वयं के भीतर के रसायन को बदलना है। यू हैव टू ब्रिंग अबाउट टोटल इनर ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम बदलोगे, जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा का विस्फोट होगा। आज आपकी केवल 5% शक्तियां आपको उपलब्ध हैं। अगर शेष जो 95% शक्तियां आपकी सोई पड़ी हैं उनको आप जगाने में सफल हो जाते हैं,
तब आप एक आंतरिक विकास को उपलब्ध होंगे। और इस आंतरिक विकास को उपलब्ध करने के लिए आत्म क्रांति की जरूरत है। और आत्म क्रांति कैसे संभव हो सकती है, उसका एसेंस है मेडिटेशन। और इसकी एक डिवाइस है जिसे माइंड पावर मेडिटेशन के नाम से मैं युवाओं को आज उपलब्ध कराना चाहता हूं। और आज आपको बताना चाहता हूं कि इस माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करके आप अपनी अनंत शक्तियों का अधिकतम उपयोग करने में सफल हो सकते हैं। हर विद्यार्थी को इस माइंड पावर मेडिटेशन को कम से कम 15 मिनट जरूर करना चाहिए। आपके भीतर जो विजडम है वो कभी नहीं पैदा होती, चाहे जितना आप चाहे टॉप भी कर जाएं अपने क्लास में। क्योंकि वास्तव में ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान जो हमें सूचनाओं के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पुस्तकों और ग्रंथों के पढ़ने से होता है। ये सूचनाओं का संग्रह है, सिंपली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और एक जिसे हम कहते हैं कि विजडम, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं बुद्धिमत्ता, जिसे हम कहते हैं विवेक, ये विवेक हमारा नहीं जागता। तो जब तक विवेक नहीं जागता है तब तक वास्तव में व्यक्ति अधूरा ही पड़ा रहता है, पशुओं की श्रेणी में ही रहता है, उससे ऊपर नहीं उठ पाता है। चाहे जितना ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, और चाहे जितना सूचनाओं पर आधारित ज्ञान का संग्रह कर ले, ये विजडम, विवेक कैसे जागता है? ज्ञान, सूचनाओं पर आधारित ज्ञान प्राप्त होता है बाहर के जगत से सूचनाएं भीतर इकट्ठा करने से। और आपका विवेक जागता है कब? जब आप थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए, सारी दुनिया से संबंध तोड़ लेते हैं और आपकी चेतना स्वयं आपके भीतर केंद्रित हो जाती है। और उसी को हमने ध्यान की संज्ञा दी है। यानी थोड़ी देर के लिए आपकी चेतना बाहर के जगत में नहीं भाग रही है। 24 घंटे दौड़ते रहते हैं आप इस काम में या उस काम में, इधर या उधर। आधे घंटे के लिए ठहर जाइए, इसे ही हमने कहा है ध्यान। और जब ऐसी स्थिति में जब आपकी ऊर्जा बाहर नहीं बहती है, तब आपके भीतर ऊर्जा का विस्फोट होना शुरू होता है और तब आपके भीतर ज्ञान का जागरण होता है, तब आपके भीतर विजडम पैदा होती है, तब आपके भीतर विवेक पैदा होता है। विवेक भीतर से आता है, बुद्धिमत्ता भीतर से जागती है। सबके भीतर बुद्धिमत्ता का विराट सरोवर है, लेकिन उसे जगाने की कुंजी, उसको जगाने की कुंजी है माइंड पावर मेडिटेशन। और ये आपसे कहूं मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन का अर्थ है, ध्यान का अर्थ है किसी देवी देवता या गुरु के चित्र पर ध्यान को केंद्रित करना ध्यान नहीं है। ये ध्यान का उल्टा है। ध्यान का अर्थ है ध्यानम निर्विषयो मनः, यानी जब आपको आपकी चेतना होशपूर्ण हो, लेकिन उस चेतना के सामने, होश के सामने कोई विचार या वस्तु न हो। यानी होश हो लेकिन विचार सामने न हो। उस विचार शून्य अवस्था में होना ही ध्यान है। दूसरे शब्दों में कहूँ, जब आप न शरीर से कुछ कर रहे हों और न ही मन से कुछ कर रहे हों, उस कुछ ना करने की अवस्था में होना ही ध्यान है। इसलिए आपके भीतर जो अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं, उनका विस्फोट तभी होगा जब कम से कम 15 मिनट माइंड पावर मेडिटेशन के माध्यम से आप विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास करें। तो मैं इस माइंड पावर मेडिटेशन के 3 चरण हैं, इन
और ये इसका पहला चरण है फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग, यानी तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। मैं एक बार करके दिखाता हूं, आपको अभी अभ्यास कराऊंगा। अभी आप केवल देखेंगे, तीनों चरणों को मैं एक एक मिनट में बता देता हूं और फिर 15 मिनट आपको अभ्यास कराता हूं। ये बड़ी पावरफुल क्रिया है। जो भी बच्चा इसका अभ्यास करेगा निश्चित रूप से वो एक आत्म क्रांति के अनुभव से गुजरेगा। उसके भीतर से विजडम का विस्फोट होगा, इंटेलिजेंस बढ़ेगी, उसकी पावर ऑफ मेमोरी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अपने एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव कैरियर में भी असाधारण सफलताएं प्राप्त करने में सफल होगा। इसलिए अपनी स्टडीज़ के साथ, अपनी एकेडमिक स्टडीज़ के साथ, कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ के साथ ये माइंड पावर मेडिटेशन अवश्य जोड़ें। ये आपकी प्रतिभा को जगाता है, आपके भीतर की क्षमता को जागृत करता है, ये आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाता है। तो आप एक अद्भुत आनंद और 24 घंटे अकारण आनंदित रहने वाली तरंग का अनुभव करेंगे। मैं सारी पृथ्वी पर इस विराट आंदोलन को खड़ा करना चाहता हूं। आप जैसे युवाचित लोगों के माध्यम से आप इसका अभ्यास करें, आपको इसका स्वाद मिले, इसकी सुगंध मिले और आप ये भी संकल्प लें कि आप कम से कम 10 युवाओं में इस संदेश को फैलाएंगे। और अगर आप इतना कर सके तो वास्तव में इस पृथ्वी पर मनुष्यता का बहुत भला होगा और आप ही एक दिन इस ध्यान के विराट आंदोलन को सारी पृथ्वी पर फैलाने का माध्यम बनेंगे और फिर हिंदुस्तान एक बार पुनः विश्व का जगत गुरु बनने का गौरव प्राप्त करेगा। उसका विज्ञान है ध्यान, ध्यान, ध्यान। इस अध्यात्म के संदेश को सारी दुनिया में भारतवर्ष के युवा ही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष की धरती ही फर्टाइल है, उपजाऊ है अध्यात्म के लिए। कुछ चीज़ें कुछ जगह पर ही पैदा होती हैं, हर जगह नहीं पैदा होती। विज्ञान की भूमि पश्चिम हो सकती है, लेकिन भीतर के आनंद की, आंतरिक ऊर्जा के जागरण की, आत्मा और परमात्मा के अनुभव की धरती भारतवर्ष ही है। तो हमारे युवा सारी दुनिया को आनंदित करेंगे और इस देश को फैलाएंगे। और इसकी छोटी सी शुरुआत बहुत बड़ी हो सकती है। सिर्फ 15 मिनट माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करना है। इसका पहला चरण है फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग। मैं एक एक बार करके दिखाता हूं, फिर आपसे उसका अभ्यास कराता हूं। फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग, इट इज क्याटिक डीप ब्रीदिंग, जिसमें कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, सिर्फ फ्री स्टाइल ब्रीदिंग है। फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। आंख बंद कर लेंगे और सुखपूर्वक बैठे रहेंगे और तीव्र गति से श्वास छोड़ना, श्वास लेना। इस प्रकार से सभी लोग फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। इसे 5 मिनट रोज करना है। पहली बार आप 2 मिनट 3 मिनट कर पाएंगे, तो इस क्रिया को 2 से 3 मिनट आज हम करेंगे। और दूसरा चरण है इंटेंस हमिंग, यानी गहन गुंजार। एक बार मैं करके दिखाता हूं। इसको 7 टाइम्स करना है आपको। प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस।
जब आप इंटेंस हमिंग करते हैं, प्राणवायु को भीतर भर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हमिंग शुरू करते हैं, भ्रमर भौरे की तरह गुंजार करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके मस्तिष्क के तंतुओं को झंकृत करती है और आपके ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, उनकी रिसेप्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आपकी प्रज्ञा, आपकी इंटेलिजेंस पहले दिन के अभ्यास से ही आपको पता चलेगा कि जैसे आपको अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। और कम से कम 7 टाइम्स हर विद्यार्थी को माइंड पावर मेडिटेशन के दूसरे चरण के रूप में इसका अभ्यास करना चाहिए। ये आपकी प्रतिभा को, आपकी पावर ऑफ मेमोरी को, आपकी इंटेलिजेंस को बहुत तेजी से बढ़ाती है, लेकिन इसका निरंतर अभ्यास होते रहना चाहिए। तो 7 टाइम्स इसको करना है। और तीसरा चरण है थर्ड आई मेडिटेशन, यानी बंद आँखों से दोनों भौहों के मध्य बिंदु पर, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, बंद आँखों से दोनों भौहों के मध्य बिंदु को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना। फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज। 10 मिनट तक जब आप लगातार देखते रहते हैं, उस प्रक्रिया में आपके भीतर जो छिपी हुई शक्तियां हैं वो थर्ड आई के माध्यम से जागती। आपके दोनों भौहों के मध्य बिंदु के नीचे पाइनियल ग्लैंड है। पाइनियल ग्लैंड आपके शरीर का सबसे रहस्यात्मक भाग है। वो बंद है लेकिन अंधी नहीं है, खोली जा सकती है। अटेंशन इज द फूड फॉर द थर्ड आई। तीसरी आंख का भोजन है ध्यान। जब आप उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आपकी तीसरी आंख पहले दिन के अभ्यास में ही वो सक्रिय होने लगती है, यानी आपकी इंटेलिजेंस सक्रिय होने लगती है। थर्ड आई ओपनिंग का अर्थ है इंटेलिजेंस का सक्रिय होना, आपकी पावर ऑफ मेमोरी का बढ़ना, आपकी प्रतिभा और आपके विवेक का जागना। जो 5% आप जागे हुए हैं, 95% सोए हुए हैं, पहले दिन अभ्यास करने पर ही आपको आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने में सफलता मिलती है। तो रोज रोज अभ्यास करना आपको असाधारण उपलब्धियों को पाने की दिशा में सक्रिय कर देता है। तो हम 10 मिनट थर्ड आई मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार ये 20 मिनट की क्रिया हो गई। 5 मिनट धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। आज तो 2 मिनट करेंगे, लेकिन रोज धीरे धीरे बढ़ा के 5 मिनट करेंगे। और इंटेंस हमिंग हमें सिर्फ 7 टाइम्स करना है एवरी डे। और तीसरा चरण है थर्ड आई मेडिटेशन। बंद आंखों से दोनों भौहों के मध्य बिंदु को देखते रहना। Focus all your attention on the midpoint between the eyebrows. I think everybody has understood it. Yes or no? Yes, sir. So wonderful. Now I will take you to the practice of mind power meditation. और तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, यही समझ लें, इसके पहले की मेडिटेशन का अभ्यास करो। अगर आप में से कोई व्यक्ति कोई विशेष मनचाही चीज को प्राप्त करना चाहता है, किसी विशेष मनचाही मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, कोई उसके जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण आकांक्षा है जिसे वो पूरा करना चाहता है, तो उसके लिए चौथा चरण भी है। चौथा चरण 5 मिनट का है। उस चरण को हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का अर्थ है कि अगर आप इस क्रिया को सही ढंग से समझ लेते हैं तो आप इस जिंदगी में कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। यू कैन बी एनीथिंग, यू कैन हैव एनीथिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग। ये मेरा अनुभव किया हुआ सत्य है और जिसका
परिणाम मैं रोज रोज अनुभव करता हूँ। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि कैसे आपको इतनी बड़ी चीज़ मिलेगी, इसके लिए तो आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई साधन नहीं है, आप इसके काबिल नहीं। यही भाव हटा देना बस, ये इस भाव को हटा के इस क्रिया का अभ्यास आपको करना है। आप इसकी परवाह ही न करें कि आपकी आकांक्षा इतनी बड़ी है, आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। आपका सब कॉन्शियस माइंड जो इस क्रिया के माध्यम से सक्रिय हो जाता है, जब आपके चेतन मन की चाह, 5% आपका चेतन मन है, 95% आपका अवचेतन मन है। उस अचेतन या अवचेतन मन में अगर जो आप पाना चाहते हैं उसका चित्र पहुंच जाता है, तो अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वह अस्तित्व की शक्तियों के साथ तालमेल करके ऐसी परिस्थितियां आपके सामने पैदा करने लगता है, ऐसे व्यक्ति लोग आपसे मिलने लगते हैं, ऐसी चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं आपके अवचेतन मन और अस्तित्व के साथ तालमेल होने की वजह से, कि जो आकांक्षा आप सार्थक करना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं, वो अपने आप साकार होने की सारी व्यवस्था अस्तित्व करने लगता है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, उसके पहले हवाई जहाज का विज्ञान उनके पास था? यस और नो? नहीं था। टेक्नोलॉजी थी? नो। इंफ्रास्ट्रक्चर था? नो। दे हैड नथिंग। तो ऐसे वो सोच सकते थे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, और कैसे में हम हवाई जहाज उड़ा लेंगे। लेकिन उनके प्राणों में एक ललक थी आसमान में पक्षियों की तरह उड़ने की। वो ललक धीरे धीरे उनके अवचेतन मन में पहुंच गई, और जब अवचेतन मन में पहुंच गई तो अवचेतन मन स्वयं उसको साकार करने लगा। अवचेतन मन में कैसे पहुंचती हैं चीजें, कैसे पहुंचाई जा सकती हैं आपके चेतन मन की आकांक्षा आपके अवचेतन मन में, इसी का विज्ञान है समाया हुआ इस पूरी माइंड पावर मेडिटेशन में। तो जो भी आपकी जीवन की आकांक्षा हो, जो भी आप पाना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो भी आपकी मंजिल हो, उसको भी साकार करने की साइंटिफिक टेक्निक है माइंड पावर मेडिटेशन। तो चौथे चरण में हम जो पाना चाहते हैं, किसी एक आकांक्षा को ले लेते हैं, उसको साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें। यस, एंड योर वर्क विल बी डन। अगर आप 5 मिनट उस आकांक्षा को साकार होता हुआ अनुभव करेंगे, जैसे वो साकार हो गई है और आप उसकी खुशी भी महसूस कर रहे हैं, तो ये साकार होने का चित्र और उसकी खुशी, ये भाव, इसके पहले अवचेतन मन आपका सक्रिय हो चुका है थर्ड आई मेडिटेशन के माध्यम से, वो अपने आप विदिन 5 मिनट्स आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगा। अवचेतन मन के कैमरे में वो क्लिक हो जाएगा और अवचेतन मन इस अस्तित्व की शक्तियों के साथ तालमेल करके उसे असलियत में साकार करने लगता है। मैं आपसे कहूं, मेरी जेब में 1 नया पैसा नहीं, और ऑस्ट्रेलिया में 6.5 एकड़ का साइंस डिवाइन फाउंडेशन का आश्रम का निर्माण शुरू हो गया। कैसे शुरू हो गया? सिर्फ वहाँ पर मैं जो अपने स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स करता हूँ, उसका लाभ उठाने वाले प्रेमी मित्रों के माध्यम से उन्होंने खुद जमीन खरीदी और लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत की ज़मीन, और उस पर निर्माण का काम शुरू कराया। मैं कभी कभी जाता हूँ वहाँ, 4-6 महीने में एक बार जाता हूँ, 10 दिन के लिए जाता हूँ, 15 दिन के लिए जाता हूँ, लेकिन वहाँ सारा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी चाह थी कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा साइंस डिवाइन फाउंडेशन का एक
केंद्र बने और वहाँ से पश्चिम के लोगों को भी इसका स्वाद उपलब्ध कराया जाए। और इसका परिणाम है कि वहाँ पे बन रहा है। मैं बॉम्बे में जाता था, अपने कार्यक्रम करता था, जाता था, अपने कार्यक्रम करता था, वहाँ इतने सारे मित्र हो गए, उनके भीतर चाह उठी, मेरे भीतर चाह उठी कि वहाँ साइंस डिवाइन फाउंडेशन के लिए साक्षी धाम इंटरनेशनल मुंबई बन जाए और वहाँ भी लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत का आश्रम निर्माणाधीन है और हमारे ख्याल से अगले 3 महीने के अंदर में उसका उद्घाटन भी शुरू होने वाला है। कैसे? एक पैसा नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मेरे पास, क्या था? एक सपना था, एक चाह थी, एक आकांक्षा थी, और कैसे वो साकार हो रही है उसी का विज्ञान आपको दे रहा हूँ, जिसका मैं रोज उपयोग करता हूँ, जिसने मेरे जीवन में हर रोज तरह तरह के चमत्कार खड़े किए हैं। और मैं कोई चीज़ अंधविश्वास पर आधारित स्वीकार नहीं करता हूँ। ये विज्ञान है, इसलिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में, एज ए साइंटिफिक प्रोसेस, आई वांट this mind power meditation to be part of your life and living, so that you can also create miracles in your life. And I hope you will do it, you will do it, you will do it. तो अभी मैं आपके प्रश्नों को ले लेता हूं और उसके बाद अंत में माइंड पावर मेडिटेशन का आपको अभ्यास कराऊंगा। होप एवरीबॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट? ओके, थैंक यू। Thank you, Guruji. Words of wisdom from such experienced people like you are always cherished and honored. Now the question answer session opens to the student. Student can ask the question, and I request Guruji to kindly give a ray of light to the sprouting questions in the mind of our budding young youth. Students, please raise your hand for your respective questions. Yes, please. आपका नाम क्या है? प्रशांत। ब्यूटीफुल। प्रशांत जी, एक प्रश्न मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे धारण करें, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आत्मसात करें, कैसे पॉजिटिव बने रहें। बड़ा मुश्किल होता है पॉजिटिव रह पाना, लेकिन आपने पूछा है पॉजिटिव एटीट्यूड बेटर है या नेगेटिव एटीट्यूड बेटर है। वास्तव में नेगेटिव एटीट्यूड का अर्थ ही होता है नकारात्मक दृष्टिकोण। जो चीज़ नकारात्मक हो, जो चीज़ अप्रीतिकर हो, जो चीज़ बुरी हो, वो कैसे अच्छी कही जा सकती है? नकारात्मक का अर्थ ही होता है कि हम किसी चीज़ के नकारात्मक आयाम को देखने लगे। जैसे इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी है ये, अब इस बिल्डिंग में हम खोजें कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। अगर हम इस बिल्डिंग की गड़बड़ी खोजने में और उसकी लिस्ट बनाने में लग जाए तो इसको क्या कहा जाएगा कि एक नकारात्मक दृष्टिकोण से मैं इस बिल्डिंग को देख रहा हूँ। आप प्रशांत जी हैं, आपका चेहरा इतना सुंदर है। अब मैंने कहा किसी से, जरा देखो इनके शरीर में चेहरा तो सुंदर है और क्या क्या गड़बड़ है। तो जो आदमी आपके गड़बड़ चीज़ों को खोजने लगेगा, आपके कपड़े उठा उठा के,
अच्छा प्रशांत जी बताओ, ऐसे आदमी को आप चाटा मार देंगे कि नहीं? ओके, फिर भी आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है, फिर भी आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप यह प्रश्न पूछने के पीछे आपकी दृष्टि हो कि हमारे सामने जो कार्य होता है, हम उस कार्य के निगेटिव आयामों को देखें कि क्या क्या उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, और उन डिफ़िकल्टीज़ का आकलन करें, उन डिफ़िकल्टीज़ का आकलन करके फिर उनका समाधान ढूंढें, तब भी हम उस कार्य को करने में सफल हो पाएंगे। Yes, that is what I am going to discuss with you, right? So that is कि आप किसी भी कार्य के डिफ़िकल्टीज़ को, नकारात्मक आयामों को सोचें और उस पर विचार करें, और फिर उनका आकलन करके उनका समाधान ढूंढने की चेष्टा करें। लेकिन ये करना आवश्यक है, उपयोगी है, लेकिन इसे हम नेगेटिव एटीट्यूड नहीं कहेंगे। ये नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है, ये है समस्या का सम्यक आकलन। समस्या का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयाम देखना और दोनों का समाधान ढूंढना। नेगेटिव आयाम को देखना बुरा नहीं है, लेकिन एटीट्यूड नेगेटिव रखना बुरा है, क्योंकि जैसा आपका होता है एटीट्यूड, जैसी आपकी होती है दृष्टि, वैसा वैसा ही आपके सामने बढ़ने लगता है। If you focus on the flowers will start increasing in your life. If you focus on thorns will start growing more and more in your life. जो व्यक्ति कांटों कांटों पर ध्यान देता है, नेगेटिव पर ध्यान देता है, उसकी जिंदगी में जो थोड़े से फूल हैं वे भी कांटों में बदल जाते हैं। और जो व्यक्ति फूलों पर ध्यान देता है, उसकी जिंदगी में जो थोड़े से कांटे हैं वह भी फूल बन जाते हैं। इसलिए एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी दृष्टि में फूल होने चाहिए, सूल नहीं होने चाहिए। थैंक यू। Anybody else want to raise your questions? Please take the mic. मेरा सभी को नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम ध्यान की प्रक्रिया 3 या 5 दिन करते हैं, फिर दोबारा मन विचलित हो जाता है, सर ऐसा क्यों होता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपने पूछा है। ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हिम्मत करके कोशिश करके कर लेते हैं, उसके बाद फिर ढीले पड़ जाते हैं और फिर छूट जाता है। और पूछा है ऐसा क्यों होता है? वास्तव में ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम जिंदगी में ध्यान को लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। हम जिंदगी में कुछ प्रायोरिटीज निर्धारित करते हैं, प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं। जो प्राथमिकताएं हमारी पहली हैं वह सब होती रहती हैं, और जो प्राथमिकताएं जिनको हम कम महत्व देते हैं वह धीरे धीरे शुरू होती हैं और शुरू होते ही खत्म हो जाती हैं। वास्तव में ध्यान को जिंदगी की सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना अनिवार्य है।
जब तक ध्यान को आप जिंदगी की सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देंगे, जब तक आत्मा के भोजन को ध्यान के रूप में देना आप अपने जीवन की सबसे पहली अनिवार्यता नहीं मान लेंगे, तब तक आप ध्यान करने में सफल नहीं हो पाएंगे। चाय पीने में आप कभी नहीं चूकते, गॉसिप करने में आप कभी नहीं चूकते, उसके लिए घंटों मिल जाता है, और व्यर्थ के कामों में समय बिताना वो आदत पड़ गई है, उसमें भी चला जाता है। लेकिन 15 मिनट ध्यान करना, उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि बहुत स्टडीज हैं, ये काम है, वो काम है। यू डोंट असाइन इट एनी प्रायोरिटी। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुदेव मिलना तो चाहता था आपसे, लेकिन क्या बताएं, इतनी व्यस्तता है। 8 महीने हो गए गुरुदेव, 8 महीने से कोशिश कर रहा हूं, नहीं आ पाया। मैंने उनसे कहा, अगर थाने का एक सिपाही फोन कर देता है कि दरोगा जी ने आपको 4 बजे शाम को बुलाया है, तो आप उसी समय से चक्कर काटना शुरू कर देते हैं थाने का। और तब तक 4 बार पहुंच जाते हैं थाने, और तब तक हर रोज थाने जाते हैं, जब तक कि दरोगा जी से आपकी मुलाकात नहीं हो जाती है, क्योंकि वो प्रायोरिटी बन गई आपकी। आप अब वो आपका सर्वोच्च प्राथमिकता का काम हो गया। और सारी दुनिया के लोगों का प्रश्न है, इस बच्चे ने जो पूछा वो सारी दुनिया के लोगों का प्रश्न है। जहां जाता हूं वहीं लोग पूछते हैं मुझसे इस प्रश्न को, और मैं खुले हृदय से आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आप ध्यान को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, महत्वपूर्ण आयाम अपने जीवन का नहीं बनाएंगे, इसे आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा कहना, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज मनुष्य की आदत पड़ जाती है वो अपने आप होने लगती है। तो आपने देखे, आपकी कुछ आदतें पड़ गई हैं अच्छी, कुछ आदतें पड़ गई हैं खराब। अच्छी आदतें जो पड़ गई हैं वो भी आप करते रहते हो, और बुरी आदतें जो भी पड़ गई है वो भी बिना प्रयास के आप करते रहते हो। वो खुद करा लेती है आपसे अपना काम। तो दूसरा आयाम है कि आप ध्यान करने की आदत डाल लें। और मेरा मानना है, जो व्यक्ति 21 दिन से 40 दिन लगातार ध्यान कर लेता है, फिर ध्यान करने की उसकी आदत पड़ जाती है, और 40 दिन ध्यान करते करते उसकी कोई ना कोई तरंग आपको मिलने लगती है। और जब ध्यान की तरंग, ध्यान का स्वाद, ध्यान की मिठास, ध्यान की झलक आपको एक बार मिल जाती है, तो ऐसी मिठास आपको इतना तेजी से पकड़ती है कि आप सब कुछ छोड़ देंगे, ध्यान करना कभी नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए उसकी आदत बना ले। हैबिट बिकम्स योर सेकंड नेचर। तो मैं कहना चाहता हूं, कम से कम 40 दिन लगातार माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करें। ये अपने आप आपसे करा लेगा, आपको उसे करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। और तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, ये आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी बने, प्राथमिकता बने, और आपके जीवन की आदत के रूप में रूपांतरित हो जाए। इसके लिए प्रातःकाल सोकर उठते ही जितना जल्दी हो सके, मेक इट द फर्स्ट वर्क ऑफ योर डे, ऑफ योर लाइफ। दिन का पहला काम, उस दिन के जीवन का पहला काम माइंड पावर मेडिटेशन को बना लें। 15 मिनट में ना तो धरती फटेगी, ना आसमान टूट कर गिर जाएगा, लेकिन 15 मिनट माइंड पावर मेडिटेशन के नाम पर आप अपने ज़िंदगी के सृजन के लिए, निर्माण के लिए, असाधारण ऊंचाइयों को पाने के लिए दे देंगे, तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा। ये मैं वचन देता हूँ आपको।
Anybody else want to raise this question? Yes, please. गुरुजी नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मन की आत्मा को कैसे सुन सकते हैं और कैसे देख सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं उसे? वंडरफुल, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने पूछा है आत्मा की आवाज को कैसे सुन सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में इसकी चर्चा तो बहुत लोग करते हैं कि मेरी आत्मा नहीं कह रही है, लेकिन वास्तव में आत्मा की आवाज़ सुनना और उसे अनुभव करना कुछ विशेष परिस्थिति में ही संभव होता है। अन्यथा आदमी के भीतर जो मन के विचार उठते हैं, तरह तरह के जो विचार उठते हैं, उन विचारों को ही लोग आत्मा की आवाज़ मान लेते हैं। वास्तव में वो मन के ही जाल होते हैं। लेकिन आत्मा की आवाज़ या आत्मा का अनुभव तभी हो सकता है जब आप विचार शून्य अवस्था में हो, जब आप इस बाह्य जगत के क्रियाकलापों से थोड़ी देर को संबंध तोड़ देते हैं, संबंध विच्छेद कर देते हैं, जब आपकी चेतना स्वयं आपके भीतर सक्रिय होने लगती है। अभी आँखों से और विभिन्न इंद्रियों से सारी ऊर्जा आपकी निरंतर बाहर जा रही है, बाहर जाती रहती है और 24 घंटे जाती रहती है, और आपकी सारी चेतना बाहर के जगत में लगी है। आत्मा तो भीतर की चीज है, ऊर्जा कभी भीतर की ओर आती नहीं है। तो आत्मा से संबंध कब बनेगा? जब ऊर्जा बाहर बहने के बजाय भीतर की ओर मुड़ जाए। इसी को महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार कहा है। यानी जो ऊर्जा बाहर जा रही है वो ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगे। कैसे बहेगी? इसके लिए ऊर्जा को भीतर बहाने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ बाहर की क्रियाओं से संबंध तोड़ लेना है। जब बाहर आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए आपने तय कर लिया कि अब 15 मिनट मुझे माइंड पावर मेडिटेशन करना है, अब बाहर के जगत से कोई मतलब नहीं, संसार में कुछ भी हो रहा हो, जा चूल्हे भाड़ में। अब 15 मिनट मैं सिर्फ स्वयं के भीतर रहूँगा। और स्वयं के भीतर रहने के लिए आपने पहला निर्णय लिया कि अब बाहर के जगत का कोई काम नहीं करना है, अब आंख बंद कर लेनी है। अब जब आप आंख बंद कर लेते हैं तो ऊर्जा जो बाहर जा रही थी वो भीतर की ओर आने लगती है। यस और नो? अब आपने आंख बंद कर ली, लेकिन अगर सोच रहे हैं कि घर में क्या हो रहा होगा, फला आदमी क्या सोच रहा होगा, या फला लड़का क्या सोच रहा होगा, या फला लड़की क्या सोच रही होगी, अगर ये बातें आपको विचार में आप उलझे हैं तो विचार भी आपको बाहर ले जाते हैं। तो अब विचारों को क्या करना है? विचारों के प्रति, विचार तो आएंगे जाएंगे, विचारों को रोकना नहीं है। विचारों को रोकने में तो फिर उसी में उलझ जाएगी ऊर्जा आपकी। विचारों के प्रति साक्षी हो जाना है। यानी विचारों के प्रति विचार आए तो आने दो, जाएं तो जाने दो, उनको रोको नहीं। आंख बंद है, विचारों में आप उलझे नहीं है। जैसे ट्रैफिक का सिपाही चौराहे पे खड़ा रहता है, बस आई तो बस, ट्रक आई तो ट्रक, जो जा रहा है जा रही है उसको सिर्फ देख रहा है, किसी में उलझ नहीं रहा है। इसी तरह विचारों के ट्रैफिक के कांस्टेबल हो जाए आप। यानी विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आप उलझे नहीं। थोड़े दिन में आप पाएंगे
अगर ये साक्षी भाव से विचारों के प्रति साक्षी भाव हो जाएगा तो थोड़े अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि जैसे आप आंख बंद करते हैं, साक्षी भाव में हो जाते हैं विचारों के प्रति, तो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही विचारों का आना बंद हो जाता है। अब जब विचारों का आना भी बंद होने लगा, आँखों से ऊर्जा बाहर जाना बंद हो जाती है और आपकी चेतना भीतर के किसी केंद्र पर, जैसे थर्ड आई पर आप केंद्रित कर देते हैं, थर्ड आई को देखते रहते हैं बंद आँखों से, तो धीरे 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 विचार शून्यता की अवस्था होती है। ऐसी अवस्था में आपको अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का अवसर मिलता है। आप अंतरात्मा की भीतर की आवाज़ आपको मिलने लगती है। ऐसे विचार शून्य अवस्था में जो भाव आपके भीतर से आएगा वही अंतरात्मा की आवाज़ होगी। यही एक प्रक्रिया है अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की, और कोई दूसरी प्रक्रिया आज तक पृथ्वी पर पैदा नहीं हुई है। जब आप माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो अपने आप आपको आत्मा का अनुभव, आत्मा का स्वाद और अंतरात्मा की आवाज़ उपलब्ध होने लगेगी। ये मैं आपको वचन देता हूँ। थोड़ा अभ्यास करें, इसके परिणाम आपको स्वयं मिलेंगे। थैंक यू। देखें कैसे? बैठ जाएं। आपने कहा कि आत्मा की आवाज को देखें कैसे? कुछ चीजें मेरे प्रिय मित्र, कुछ चीजें देखने का अर्थ सिर्फ अनुभव करना है। आवाज कभी दिखाई नहीं पड़ती है, अनुभव होती है। जैसे सामान्य आवाज भी, जब आवाज को आप देखने की कोशिश करेंगे, मेरी आवाज देख रहे हैं आप या सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। आवाज देखने का नहीं, सुनने का विषय। Any question? Good afternoon to all present here. My question to Guruji is that how past life deeds affects our current life? ब्यूटीफुल। हमारे पूर्व जन्म के कृत्य हमारे इस जन्म के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? वास्तव में सामान्य दृष्टि में, हमारी सीमित दृष्टि में हम समझते हैं पूर्व जन्म और नया जन्म, लेकिन सम्यक दृष्टि, जब हम गहन दृष्टि को उपलब्ध हो जाते हैं तो लगता है कि ये जीवन एक श्रृंखला है, चेन है, चल ही रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने कल गुस्सा किया, कल क्रोध किया, परसों क्रोध किया, नरसों क्रोध किया, और आपकी आदत है आप बरसों से क्रोध करते चले आ रहे हैं। जब भी आप प्रातःकाल बिस्तर से सोकर उठते हैं और आप अपनी चप्पल खोजते हैं, चप्पल नहीं मिलती, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। तो पिछले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से ऐसा हो रहा है। अगर 10 साल से ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से कल भी जब आप सोकर उठेंगे, चप्पल खोजेंगे, नहीं मिलेगी, तो घर के जितने लोग हैं सबकी ऐसी तैसी कर देंगे, क्रोध पकड़ लेगा आप। यस और नो? तो पिछले जीवन में जैसा जैसा कर रहे हो, जैसा जैसा किए हो, वही चल रहा है।
वही पकड़ता है, दबोच लेता है आपको, और आप कहते हो कि ऐसा मेरे से हो गया। करना नहीं चाहते थे, लेकिन एक प्रक्रिया है, इतने जन्मों से करते आ रहे हो, वो कोई चीज़ है कि आपसे करा लेती है। और ऐसे ही तरह तरह के मनोवेग, आप क्या आप सोचते हैं कि क्रोध आप करते हैं? क्रोध हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे से कोई चक्र घूमता हुआ आ रहा है और वो पकड़ लेता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और थोड़ी देर बाद साइकिल चलाना छोड़ देते हैं, तो भी जितना मोमेंटम है उस मोमेंटम से साइकिल चलती रहती है। तो एक मोमेंटम पिछले जन्म के कर्मों ने, एक पिछले जन्म के कर्मों ने आपको एक मोमेंटम में, एक गति में डाल दिया है, और बिना आपके किए हुए, बिना आपके कुछ किए हुए वो आपको पकड़ती है, दबोच लेती है। आप क्रोध नहीं करना चाहते हो, क्रोध कर देते हो। काम वासना क्या आप पैदा करते हो? वो दबोच ही लेती है आपको। ये सारे लोभ आपको दबोच ही लेता है, ईर्ष्या आपको दबोच ही लेती है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जो भी हैं, जैसा जैसा आपने जीवन दिया है पिछले जन्म में, वो आपको आज भी दबोच लेता है। और इस चक्र से मुक्त होने का एक ही उपाय है, जागना। चूंकि आप उसी क्रम में चल रहे हो, 5% ही जागे हो। जो व्यक्ति पूरा पूरा जाग जाता है, अभी आप 5% जागे हो, जब माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे 10%, 15% जाग जाओगे, 20% जाग जाओगे। बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, कबीर जैसे लोग ऐसे लोग हैं जो 100% जाग चुके हैं, जिनकी चेतना 100% जाग चुकी है। वे अपने मालिक हैं, वे गुलाम नहीं है अपने, क्या है? मालिक है, क्योंकि वो जाग चुके हैं। अब पिछले जन्म के कर्म उन पे लागू नहीं होते क्योंकि जागे हुए हैं। अब वो मैकेनिकल नहीं है, क्या है? अब वो मैकेनिकली काम, क्रोध, लोभ उनको नहीं पकड़ सकता क्योंकि वो जाग गए हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक जाग जाता है, जो व्यक्ति जितना अधिक अपने आत्मा के निकट हो जाता है, वो व्यक्ति उतना ही अपना मालिक बनता चला जाता है। ऐसे ही लोगों को हमने स्वामी की संज्ञा दी, लेकिन आज तो सारे स्वामी चिरकुटानंद स्वामी बने बैठे हैं। सारे लोग अपने को स्वामी कहने लगे हैं, लेकिन स्वामी का अर्थ होता है जो अपना मालिक बन गया है, यानी जो अब पूर्व जन्म के या पिछले कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुका है। और उससे, उनसे मुक्त होने की एक ही महाऔषधि है, एक ही क्रिया है, एक ही प्रक्रिया है, एक ही उपाय है, माइंड पावर मेडिटेशन। माइंड पावर मेडिटेशन, माइंड पावर मेडिटेशन करते करते आप इतना शक्तिशाली हो जाएंगे कि आपको कोई भी मनोविकार दबोच नहीं पाएगा। थैंक यू। Who else wants to ask the question? Good afternoon, sir. Myself Aditya Vadwaj. I am one curious with a feeling just called anxiety. How does anxiety affect our heart and mind when we are facing some trouble situations? Okay, beautiful. वास्तव में एंजाइटी का अर्थ है आप किसी भी घटना के, भविष्य के नकारात्मक आयाम को लगातार देखना। आप जिंदगी की किन्हीं चीज़ों को लेकर के इतना भयभीत हो जाते हैं कि भविष्य में कहीं ऐसा घटित न हो जाए, और बार बार आपके चित्त में वही भय आंदोलित होता रहता है। जो चीज़ बार बार आपके चित्त में आंदोलित होती रहती है वो वास्तव में बड़ी शक्तिशाली हो जाती है। और ये सिर्फ इस आदत का परिणाम है कि आपने भविष्य की नकारात्मक संकल्पना करने की आदत पैदा कर ली है। तो वो आदत इतनी सघन हो गई है कि आपको एंजाइटी की बीमारी के रूप में पकड़ लेती है।
वास्तव में आपकी ज़िंदगी के जो भी अनुभव हैं वह सब आपके भीतर होते हैं। आप प्लेजर अनुभव करते हैं भीतर, पेन अनुभव करते हैं भीतर, जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, जितने भी भाव होते हैं वो सब आपके भीतर है। और जो भी आप सोचते हैं वो सब भी भाव आप अपने भीतर से ही बाहर ले जाते हैं। तो जो भी आप भविष्य के बारे में भावना कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर रहा है। लेकिन आपने हमेशा नकारात्मक चित्र ही देखने की आदत डाल ली है। अगर आप नकारात्मक चित्र देखने की आदत डाल लेंगे तो आपको भय पकड़ेगा। इस आदत को आप बदल भी सकते हैं। नकारात्मक फिल्म बनाने के बजाय सकारात्मक फिल्म बनाना शुरू करें। दुखांत फिल्म बनाने के बजाय सुखांत फिल्म बनाने की कोशिश करें। जैसी फिल्म आप देखना चाहते हैं वैसी बनाएं। बना तो आप ही रहे हैं, यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फिल्म। तो भविष्य की फिल्म जो आप नकारात्मक बनाते हैं वो अगर आप सकारात्मक बनाने लगें तो आप एंजाइटी से मुक्त हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मन है कि मानता नहीं, वो नकारात्मक ही हो जाता है। तो मन नकारात्मक ना हो, मन आपके कंट्रोल में रहे, इसका उपाय क्या है? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 3 मित्र थे। एक सुखांतवादी था, एक निराशावादी था और एक रोमांटिक था। तीनों मित्र एक ही फ्लैट में रहते थे और नोएडा में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो 60 मंजिला अपार्टमेंट था। तो एक दिन तीनों मित्र अपने दफ्तर से वापस आए। जब अपनी बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो पता लगा लिफ्ट ही खराब हो गई है और 60वीं मंजिल पे उनका मकान था। उन्होंने कहा चलो अब स्टेयरकेस से ही चलना, सीढ़ी से ही चलना है, यात्रा करके चलना है। तो उन्होंने कहा चलो तीनों लोग 20-20 मंजिल तक अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे। तो जो रोमांटिक आदमी था उसने कुछ रोमांटिक कहानियाँ सुनाना शुरू किया और 20 मंजिल तक ले गया। जो सुखांतवादी था, सुखवादी, जो ऑप्टिमिस्ट था, आशावादी था, वो आशावाद की कहानियाँ सुनाता गया। और जो पेसिमिस्ट था, निराशावादी था, वो हमेशा निराशा की कहानियाँ सुनाता था। जब उसकी बारी आई कहानी सुनाने की तब तक 40 मंजिल पर पहुंच चुके थे लोग। उसने कहा मैं कहानी क्या सुनाऊं, अभी मैंने जेब में हाथ डाला तो कार की चाबी तो कार के अंदर, कमरे की चाबी तो कार के अंदर ही छूट गई है नीचे। यानी जो जैसा सोचता है, जिस दायरे में रहता है, निराशावादी हमेशा निराशावादी सोच रखता है, निराशावादी बातें करता है, तो उसकी जिंदगी की सारी घटनाएं भी नकारात्मक हो जाती हैं, निराशा में रूपांतरित हो जाती हैं। इससे ज़्यादा पावरफुल कहानी क्या हो सकती है निराशावाद की, कि जेब में हाथ डाला तो पता चला 40 मंजिल नीचे जाना पड़ेगा चाबी लेने के लिए। तो ये जो आदत है, इस आदत को तोड़ा जा सकता है। इस आदत को तोड़ने के लिए आपको पहली आवश्यकता है माइंड पावर मेडिटेशन। इससे आप माइंड पावर मेडिटेशन से आप अपने मालिक बनने लगते हैं और मन आपका गुलाम बनने लगता है। मन जैसा चाहेगा वैसी फिल्म नहीं बनाएगा, आप जैसी चाहोगी वैसी फिल्म मन को बनाना पड़ेगा।
पहली बात तो माइंड पावर मेडिटेशन इज द रेमेडी। दूसरी बात, अब ये बीमारी का भी रूप ले लेता है धीरे धीरे, आपके शरीर में सेरोटोनिन का सिक्रेशन कम होने लगता है। तो इस सेरोटोनिन को पैदा करने के लिए दूसरी आवश्यकता है कि कम से कम 1 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज करें आप, ताकि वो हार्मोन आपके भीतर, जो खुशी का हार्मोन है, सकारात्मकता का हार्मोन है, वो आपके भीतर सीक्रेट, तो एक्सरसाइज करें। और तीसरी, थोड़ा अपने अंतरंग मित्रों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते रहें और थोड़ा हंसमुख लोगों से मित्रता बनाएं, वो आपको सकारात्मक सोच की ओर और ले जाएंगे। उससे आपके आसपास एक सकारात्मकता का वातावरण बनेगा। और निश्चित समझ लें कि एंजाइटी इन 3 प्रकार के उपायों से बड़ी एंजाइटी भी खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है, जड़ से समाप्त हो सकती है। कभी आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू। नमस्कार सदगुरु सर, आई एम सचिन सिसोदिया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में हम हमेशा मासूम और आज्ञाकारी नहीं हो सकते। लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें लाइफ की पीपल पॉलिसी सीखनी पड़ती है। तो इस प्रोसेस में हम लोगों को कैसे कंट्रोल करें? मासूम और आज्ञाकारी नहीं हो सकते सर लाइफ में हम हमेशा मासूम और आज्ञाकारी नहीं हो सकते। ओके। लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें पीपल पॉलिसी सीखनी पड़ती हैं। तो पीपल पॉलिसी सीखनी पड़ती हैं। तो पीपल पॉलिसी, यस, इस प्रोसेस में हम लोगों को कैसे कंट्रोल करें? ओह, ओके ओके, थैंक यू। हर माँ बाप आज्ञाकारी बच्चे पैदा करना चाहता है, और मैंने अपने अनुभव में देखा है जो बच्चा जितना ज़्यादा आज्ञाकारी होता है उतना बड़ा स्टूपिड होता है। मैं माँ बाप को चाहता हूँ कि अपनी समझ दें, अपनी विजडम दें, लेकिन बच्चे को स्वयं निर्णय करने की कला सिखाएं। और तुम खुद भी अपने विवेक से, अपने अंतस के स्वर से निर्णय लेना सीखो। अगर आप, अभी स्थिति यह है कि अगर आप माँ बाप आपको छोड़ दें और कह दें कि जैसा चाहो वैसा करो, तो आप इतने मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते रहोगे जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि आपके पास अनुभव भी नहीं है। और समाज में तरह तरह के भटकाव हैं जो आपको उलझा देंगे। इसलिए माँ बाप की पीड़ा होती है कि वह आपको अपने अनुभव से सही रास्ता दिखाएं, सही रास्ते की ओर ले जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनके अनुभव को मानने के लिए विवश हों। आप अपने विवेक से निर्णय लें, लेकिन अभी आपका विवेक जागा नहीं है। अपने विवेक को जगाने के पहले अगर आप निर्णय लेने लगेंगे तो आप स्वयं के लिए बड़े खतरे पैदा कर लेंगे। इसलिए अपने विवेक को जगाएं। जब आपका विवेक जाग जाएगा तब आपको आज्ञा लेने की, आज्ञा का पालन करने की, किसी प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। और तब आप अपने माँ बाप को कह सकते हो, अपने बड़ों को कह सकते हो कि मुझ पर भरोसा करो, मेरे निर्णय पर भरोसा करो। और आपके निर्णय ऐसे भरोसे वाले होंगे कि माँ बाप भी आपकी पीठ ठोकेंगे। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है अपने विवेक को जगाएं, माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और उसको सुनने का अवसर पैदा करें। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।
Good afternoon, Guruji. My question is, what is the real meaning of health? Oh, beautiful. Thank you, sir. Okay. Beautiful question from a beautiful girl. So, meaning of health. हेल्थ का अर्थ है समथिंग which is already healed. Health has come from healing, and when your body is well healed, the Westerners call it health. लेकिन हेल्थ बहुत हल्का कमजोर शब्द है. भारतवर्ष के अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हेल्थ के लिए बड़े अद्भुत शब्द का उपयोग किया. उसको उन्होंने कहा स्वस्थ होना. स्वस्थ होने का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के भीतर स्थित होने की कला सीख गया. स्व प्लस अस्थ यानी स्वयं में स्थित हो जाना. स्वयं में स्थित होने का अर्थ है जब आपकी चेतना, जब आप चाहें बाहर की जगत से मुक्त होकर स्वयं में स्थित हो जाए. जो व्यक्ति स्वयं में स्थित होने की कला सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वस्थ है. और वही सच्चे अर्थों और स्वयं में स्थित हो जाने पर सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जया जऊ. वही जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं में स्थित हो जाता है वो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, हर स्थिति में हानि, लाभ, जय, पराजय, मान अपमान से पैदा होने वाले दुखों से मुक्त हो जाता है. वही सच्चे अर्थों में स्वस्थ है. और ऐसा स्वास्थ्य आपको तभी मिल सकता है जब आप माइंड पावर मेडिटेशन के माध्यम से स्वयं में स्थित होने की कला को सीख लें. इसलिए इस बालिका का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है. बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Due to limitation of time, I request Guruji to allow us to conclude this session. Now, as a token of gratitude and respect, I would like to request our Honorable Chairman Sir to felicitate Guruji. Now, I would like to request Guruji to appreciate Dr. Babita Kumar Ma'am, Director of Pharmacy, for arranging this motivational session. From the depth of our heart, we would like to thank our guest Sadhguru Sakshi Sriji for sparing his valuable time to enlighten us. We look forward for an opportunity to see you again in the near future for continuous association with Sanskar Educational Group. Thank you all. Now, to log this amazing time as a memento of memory, I would like to call upon stage all faculty members for a group photograph.